Konnichiwa guys, my name is Rohit Shiv Prasad and I'm the founder of RSP in Japan. I know तुम लोग सोच रहे हो कि कहाँ थे इतने दिन से. वैसे recently I have to work on my project and everything, like बहुत सारी चीजें पाइल अप हो गई हैं, so I decided कि थोड़ा एक pause ले लेते हैं. I'm sorry for that, but I'm back and थोड़ा सा आगे जाके और pause लगेगा, but okay. So well, in today's video, we are going to talk about how to improve your Japanese speaking skills. Most important. कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि अभी तो मैंने सिर्फ N5 की है, क्या जापानीज में बात करूंगा. The problem is there. You should be able to speak in Japanese no matter किस लेवल पे हो तुम लोग. N5 पे भी तुम बेसिक जापानीज सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, अपना जिको शोकाई दे सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. And how to improve it is what we are going to talk about in this video. So watch the video till the end to understand each and everything about it. लेकिन उससे पहले थम्बो अनाउंसमेंट्स हैं. न्यू ईयर चालू होते ही आई एम गोना स्टार्ट अ N4 बैच एंड आई एम गोइंग टू टीच दैट. सो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाल दे रहे हैं. इफ यू वांट टू जॉइन द बैच एंड लर्न जापानीज विद मी, फॉर्म फिल कर दो एंड वट एवर द डिटेल्स आर वो हम तुम्हें सब मेल कर देंगे. जनवरी मिड में चालू होगा. एंड एक और है, तुम कह सकते हो कि दिस इज द रीजन वाई अभी रिसेंटली वीडियोस नहीं बनी. सो बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा. देखो, yes, we have launched our brand, RSP in Japan brand हमने launch कर दिया है and you can buy the t-shirts, the flash books, anything from Amazon right away. And ले लो because limited stock है हमारे पास. हटाओ ये सब. अब let's talk about the main topic की how to speak in Japanese fluently. Okay, so there are a few things that you need to keep in mind. Let me just show you how these levels of Japanese work. Like, okay, let's talk about it. N5, kore wa fudo desu. Or N4, kore wa kuroi fudo desu ga totemo suki desu. This is how you'll progress in levels. Now the basic problem is that many of you think N5 अगर आता है तो, or maybe N5 पे you can't speak Japanese, and that's very wrong. If you're following Minna no Nihongo, you should be able to converse in Japanese with just N5. Let me tell you how. For practice, you can start with your Jiko Shokai. It's very basic. Watashi wa Rohito desu, watashi wa Indojin desu, kazoku wa gonin desu, and dozo yoroshiku onegaishimasu. Just elaborate. जितना खींच सकते हो उसे खींचो. जो पढ़ा है सब उसमें डाल दो. खींचो, गलत सलत लिखो, अपने सेंसेस से बोलो कि इसे सही करके दो, बट करो. That's how you practice. That's how you learn. So बात ये आती है कि if you're doing N5, how can you improve it? The thing is, this is the very important point for any level, not just N5, N4, N3, any level. You have to match your Japanese grammar level to your Hindi or English grammar level. Whatever language you're thinking in, you have to bring it down so that you can actually convert easily. अब इसका मतलब समझाता हूँ. Let's just say there is a sentence called कि I want to go to school but I'm very tired. And let's just suppose कि you're in N5. Now, English में सोच रहे हो तो ऐसा I want to go to school but I'm very tired. But अगर हिंदी में सोच रहे हो तो आज स्कूल जाने का मन नहीं है क्योंकि मैं थक गया हूं. अब N5 में तो ये नहीं होने वाला. सो तुम्हें वो जो हिंदी का लेवल है उसे नीचे लाना होगा अपने जापानीज N5 के लेवल में. अब सोचो, थिंक अबाउट दिस सेंटेंस. आज स्कूल नहीं जाऊंगा, थक गया हूं. क्यों गाको इकिमासेन, सुकारेमाशिता. बस ठीक है. मतलब सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए, उतना काफी है. जो तुमने यहाँ पे सीखा है वो ये है कि if you bring down the level of English or Hindi, whatever language you're thinking in and then translating, मतलब ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. तब जाके तुम्हारी जापानीज फ्लुएंसी बढ़ेगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा वाह क्या तीर मारे हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं करता था, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट. सेकेंड, जापानीज में सोचने की आदत डालो.
तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जबान के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी इंग्लिश या फिर हिंदी के थ्रू, उसे जापानीज के थ्रू कनेक्ट करो। तो मतलब सोचो भी जापानीज में, अब ये कैसे करें? देखो सिंपल है तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? कुछ बोलो मत, कुछ मत करो, एकदम ब्लैंक फेस, पोकर फेस करते हैं। ओके देखो मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है, कि अपने लेवल पे ही सोचो। N5 की ही बात करते हैं चलो, कि अभी तुम्हारे सराउंडिंग्स में ना बहुत कुछ होगा और तुम लोग ने कोरे सोरे आरे पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक, ठीक है। चालू करो। कोरेवा तेबुरु देस, कोरेवा चेया देस, या फिर कोरेवा इसु देस, फिर कोरेवा कुरोई देस, कोरेमो कुरोई देस। तुम्हें एक कॉन्फिडेंस लाना है और सोचना चालू करना होगा, ताकि तुम जापानीज सेंटेंसेस फ्रेम कर सको करेक्ट पार्टिकल्स के साथ। धीरे धीरे तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि क्या गलतियां तुम कर रहे हो। इससे क्या होता है ना, तुम्हारे जो पीछे के बेसिक्स है वो क्लियर होते जाते हैं। लोग क्या करते हैं, N5 पढ़ के एंड फिर N4 में जंप मारते हैं, बट वो N5 बिल्कुल बात ही नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, N4 तो खैर नीचे ही जाना है, N5 भी चला जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर तुम्हारा गोल या फिर मोटो जापान आना है एंड इसलिए तुम जापानीज पढ़ रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें जापानीज में बात करना आए। क्यों? तुम इंडिया में N2 या N1 तक बैठ के आराम से सर्टिफिकेट ले सकते हो। किसी भी कंपनी में या स्कूल में यहाँ पे जब अप्लाई करोगे, तुम बोलोगे मेरे पास N1 है, फिर उसके बाद ऐसा ही होगा कि सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा दैट यू नो N1। तुम्हारी जापानीज फ्लुएंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। बट मुंह खोलते ही पूरा हो गया काम, बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेट्स जस्ट से यू जस्ट N3, लेकिन तुम्हारी जापानीज निकल रही है, निकले जा रही है, इन दैट केस तुम्हारा जो इंप्रेशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा एंड दे विल थिंक कि वाह क्या बात है, मतलब तुम्हें जापानीज में इतना इंटरेस्ट है, बहुत प्लस पॉइंट्स। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेरी, और एटलीस्ट वट एवर लेवल यू आर उसमें बात। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एंड दिस इज अगेन, every point was important, this is also very important. This one is that you should start listening in Japanese. You should improve your listening skills if you want to improve your speaking skills. क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे? सोचो, जब मैं छोटा बच्चा था मैं कुछ नहीं बोल पाता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ बस पट 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 बोलता हूँ। जब हम छोटे थे तो हम लोग ना मतलब सुनते थे और सुन सुन के कुछ भी समझ में आया फिर हम बोलते थे। बोल बोल के प्रैक्टिस करने से ज्यादा इफेक्टिव है सुन के सीख के प्रैक्टिस करना। तो अगर तुम्हें अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है या इम्प्रूव करनी है, तो तुम्हें अपनी लिसनिंग भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब कैसे कर सकते हो ये इज कि तुम डेस्पासीतो गाना सुना है तुम लोगों ने? मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलते रहता हूँ, तो डेस्पासीतो अगर तुम लोगों ने गाना सुना हुआ है तो मुझे पता है कि तुम में से 50% या 60% लोगों को समझ नहीं आता होगा वो क्या बोल रहा है, लेकिन गाना बजेगा तो तुम गाओगे, लिरिक्स भी बोल दोगे, ठीक है। और यही होता है, तुमने कभी कोशिश नहीं की होगी उसे गाने को याद किया जाए, सुन सुन के बस बैठ गया है दिमाग में, वो टोन याद हो गई है, जैसे ऊपर नीचे वो बोलते हैं सब। जापानीज यूट्यूब, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी पॉडकास्ट जापानीज लेके बस सुनो, सुनते रहो, वो टोन से यूज टू हो जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं कोई लेना देना नहीं है, 10 बार सुनो, 100 बार सुनो, बहुत हेक्टिक हो जाता है बीच में, फिर डेस्पासीटो बजा लो, खुश हो जाओ, फिर उसके बाद फिर से सुनो, बट सुनो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारी जापानीज अच्छी होगी। दैट वॉज ऑल। ये मेरे 3 रहस्य हैं जो मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स ऐसे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल। एंड हाँ, टी-शर्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हो Amazon से, हमारी वेबसाइट पे जाके शॉप पे क्लिक करके भी जा सकते हो, या फिर गूगल पे सर्च कर लो RSP in Japan, या फिर अब तुम Amazon पे सर्च कर लो RSP in Japan। I wish you a very happy new year ahead, and भाई लोग, जो भी तुम्हारे सपने हो सब पूरे हो जाएं, जो भी तुम्हारे रेजोल्यूशंस हो सब पूरे हो जाएं। और हाँ,
अपना सपोर्ट बनाए रखो प्लीज। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और तुम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं देते रहूंगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, लेकिन जल्दी वापस आएंगे। सो thank you guys for watching the video and see you next time. Bye bye. And now you can try out our Kanji flashcards. It is available on Amazon and you can purchase it through that. You'll get a set of workbook and 2 flashcard sets. These contains 244 words, 120 kanjis. You will also be able to bind them together using this rubber band. This is very convenient actually, and it comes with this workbook in which you can practice your hiragana, katakana, and also you'll be able to practice your kanjis. And we have also attached renshu and practice papers for you guys. Link is in the description below. Order now to get it as soon as possible.